Hello everyone. Today I am going to discuss the first poem of class English titled as A Photograph, written by Shirley Tolson. But before starting the video, I would like to request all of you who are watching this video, if you are new at this channel, then please subscribe it, like the video and share among your friends and relatives. Today I'm going to discuss the central idea of this poem first, then stanza-wise important questions and their answer. I will tell you the central idea and summary of the poem in English as well as in Hindi. Okay? Okay, now come with me on the screen. First, the introduction of the poem. Now, watch the screen here. The poem captures three different moods and situations in three stanzas. The first one tells about a snapshot or an instant cardboard photo of three girls. They are cousins. The eldest one, 12-year-old, became the mother of the poetess after marriage. They are enjoying a sea holiday, putting on funny dresses. Their uncle clicks the camera and captures the smiling faces of all the three. Some 20-30 years later, the mother looks at the photo and laughs. She tells the poetess how her cousin Betty and Dolly had all dressed for the holiday. The outing on the beach in a quaint dress was the mother's past, but her laughter has become a thing of the past for the poetess. The mother passed away some 12 years ago. The void created by her death has made life dull and eventless. Now, summary of the poem. The poetess looks at the photograph of her late mother with her two cousins on a sea beach. The mother was the eldest of the three, 12-year-old, and had a lovely face. They were escorted by the uncle, who clicked the camera. The girls stood in shallow water. The sea waves seemed to be washing their feet, which changed fast with the passage of time. Only the sea has shown no change in its behavior over the year. The mother happened to see her photo after a long gap of some 20-30 years. She was amused to see the pretty beach dresses of all the three girls. She blushed and laughed. She told the poetess that they had been dressed for the pleasure trip by her cousin Betty and Dolly. The sea holiday was the mother's past, but after she had passed away, her laughter became a thing of the past for the poetess. Both had lost their newness with the passing of time. The photograph is twisted and faded. The memory of the mother's laughter has also grown faint.
The mother of the poetess died some 12 years ago. The poetess has faced only blank silence after her mother's death. She has nothing to say about that period since the mother left. Now, see the summary of this poem in Hindi. प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका आप समरी यहाँ देखें, इस तरह से है। कवित्री अपनी दिवंगत माँ की चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर खींची गई एक फोटो में दिखती है। उस समय माँ की आयु मात्र 12 वर्ष थी। वही तीनों में ज्येष्ठ थी तथा उसका चेहरा भी सुंदर था। उसके साथ उनके अंकल गए थे जिन्होंने कैमरे से फोटो खींची थी। तीनों बहनें उथले पानी में खड़ी थी। समुद्र की लहरें जैसे उनके पांव पखार रही थी। ये पांव तो वेग से समय के साथ आकार आदि में बदल गए, पर समुद्र के व्यवहार में इतने वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं आया। मां ने संयोग से वही फोटो शादी के 20-30 वर्ष पश्चात देखी। वह हंसी ना रोक सकी क्योंकि तीनों बहनों ने विचित्र वस्त्र पहन रखे थे। वह लजा गई तथा हंस दी। उसने अपनी बेटी कवित्री को बताया कि इस अवसर के लिए उसकी दोनों चचेरी बहनों बेटी तथा डॉली ने ही उनके वस्त्रों का चयन किया था। वह समुद्र तट की घटना तो माँ का अतीत बन गई थी, पर उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी हंसी ही कवित्री के लिए इतिहास की एक घटना बन गई। दोनों ही समय के थपेड़े खाकर अपना नया ताजापन खो चुके थे। फोटो में सिकुड़न आ गई थी तथा फीकी पड़ गई थी। माँ की हंसी की याद भी अब तक मंद पड़ गई थी। कवित्री की माँ का निधन कोई 12 वर्ष पूर्व हो गया था। कवित्री ने माँ के जाने के पश्चात केवल खाली सन्नाटा ही भोगा है। माँ के स्वर्गवास के पश्चात के इस समय के बारे में उसके पास कहने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये जो पोइम है फोटोग्राफ, एक्चुअली एक बहुत ही शॉर्ट पोइम है और जिसमें बेसिकली मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि डिफरेंट मूड्स के बारे में बताया गया है। पहला जो पार्ट है पोइम का, उसमें तो एक्सप्लेनेशन है कि कवित्री की जो माँ हैं वो जब खुद एक बच्ची थी तो वो और उनके जो कजन्स थे वे 3 लोग थे, डॉली, बेटी और ये कवित्री की माँ हैं। ये तीनों लोग सी बीच पर हॉलीडे सेलिब्रेट करने गए थे और उनके साथ उनके अंकल भी थे। और जब वो लोग उथले पानी में खेल रही थी तो उनके अंकल ने कैमरा से उनका ये फोटोग्राफ लिया था और ये फोटोग्राफ माँ ने बड़ा ही संजो के रखा हुआ था। उनके शादी के लगभग 20-30 वर्ष बीत गए थे और अक्सर जब वो उस फोटो को देखा करती थी तो फोटो को देखने के बाद वो उन दिनों को याद करती थी, उस मोमेंट को याद करती थी और उनके चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट आ जाती थी। और कवित्री उस समय जब छोटी थी तो अक्सर वो कवित्री को भी वो फोटोग्राफ दिखाती और उस मोमेंट को एक्सप्लेन करती थी। तो वो पल कवित्री और उनकी माँ दोनों के लिए एक सुख का मोमेंट था। अब लगभग 12 साल बीत चुके हैं और कवित्री की माँ का देहांत हो चुका है। लेकिन उनके माँ के देहांत के बाद कवित्री जो है वो बड़ा निराश हो गई हैं और उन्होंने अब उनका जीवन लगता है कि एकदम एकाकीपन में ही बीतेगा, ऐसा मान लिया है। क्योंकि जब कभी भी वो उस फोटोग्राफ को देखती है तो अपनी माँ की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। और लेकिन यहाँ पर उस फोटो का जो फ्रेशनेस है, जो ताज़ापन है, वो खो गया है। क्यों? समय के साथ साथ वो फोटो भी पुराना हो गया है और जिस तरह से उसमें अंकित जो चित्र हैं वो फेड हो गए हैं। तो धीरे धीरे लग रहा है कि उसकी माँ की जो यादें हैं, वो जो मोमेंट है, वो भी फेड होते जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। फोटो एक फिजिकल सब्सटेंस है and it may be affected by the natural factors, but the memory of a human being not as a thing which may be faded, you can say here.
तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कवि ने यह कहकर जनरेट किया है कि हो सकता है कि वो फोटोग्राफ पुराने हो गए हों, उनका जो नयापन है वो खो गया हो, लेकिन वो जो यादें हैं वो कवित्री के दिमाग में अभी भी ताज़ा है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर लाया गया है इसके कवित्री के द्वारा। तो खैर ये छोटा सा पॉइंट था जिसका सेंट्रल आइडिया आपने समझ लिया। अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अब इसके स्टेंजा वाइज क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो इस वीडियो का मेन आज फोकस भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट स्टेंजा को यहाँ पर देखेंगे। ये फर्स्ट स्टेंजा है। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. Now see some words which has some specific meaning here. The first word is cardboard. Cardboard. The instant photo that comes out of the camera. कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ है जो कैमरे से खींचा गया है। इट हैज़ द हार्ड बेस ऑफ ए कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब ये भी है, आप देखेंगे जो फोटोग्राफ है उसको एक हार्ड जो प्लाईवुड टाइप का चीज़ होता है उस पर उसको लगा दिया जाता है। तो कार्डबोर्ड इज द थिंग्स विच इज़ हार्ड एंड हैविंग ए फोटोग्राफ्स पेस्टेड ओवर इट, यू कैन से हियर। ओके, हाउ इट वाज, ये जो फ्रेज है यहाँ पे इसका मतलब है द सिचुएशन एट दैट टाइम, यानी उस समय का क्या सिचुएशन था। नाउ द नेक्स्ट वर्ड है पैडलिंग, वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स ऑन वाटर, पानी में छप छप करके चलना उसको हम लोग पैडलिंग कहते हैं। इसका द प्रोपेलिंग ए स्मॉल बोट फॉर स्पोर्ट ऑन वाटर, पैर से चलाए जाने वाला एक प्रकार का नाव कहें, छोटा सा होता है, ठीक है, जिसको पैडल करके लोग पैडल मारते हैं और नाव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। होल्डिंग का मतलब है यहाँ पर थामे हुए। बिग गर्ल यहाँ पर जो है वो द मदर ऑफ द पोएटेस है, माँ जो कवित्री है उनकी माँ है। वाज देन ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, और वो समय जो कि 12 साल की थी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है प्यारे बच्चों, आप इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये देख लें, तो फिर क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा। कवित्री एक पुरानी फ़ोटो देख रही है जब उसकी माँ अविवाहित थी, 12 वर्ष की थी वह अपनी दो छोटी चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर सैर करने गई थी। वहाँ वे उथले पानी में संभल संभल कर चल रही थी। कवित्री की माँ उन तीनों में सबसे बड़ी आयु की थी, 12 वर्ष। ठीक है, अब ये जो स्टेंजा है इससे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इस क्वेश्चंस को देखें। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखिए स्क्रीन पर, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। पहला क्वेश्चन, ये कार्डबोर्ड का मतलब क्या है और ये कार्डबोर्ड शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हु वर द 3 गर्ल्स कैप्चर इन द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ में जो 3 लड़कियां हैं वो कौन हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग और पैडलिंग, यानी वो जो हॉलीडे मनाने के लिए वो कहाँ गए हुए हैं। तो आई थिंक तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ ध्यान दें कि जब भी पोएम में स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर बहुत लॉन्ग नहीं लिखना चाहिए, 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन एनफ होता है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, उसका आंसर आपको इस तरह से लिखेंगे, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द इंस्टेंट फोटो और स्नैपशॉट दैट इज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड इन द फोटो फ्रेम। तो कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि who were the 3 girls captured in that photograph. The 3 girls captured in the photograph were the mother of the poetess, who was not married then, and her 2 cousins Betty and Tolly. ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन था कि हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ गए थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, दे हैड गॉन आउट फॉर ए सी हॉलीडे, दे वर फोटोग्राफ्ड ऑन द सी बीच। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा से ये 3 क्वेश्चंस थे। नाउ हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर। पहले इसका हम लोग लाइन देख लें यहाँ पर, ये जो सेकंड स्टेंजा है, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। नाउ some words and their probable meaning. All 3.
स्पेशली द पोइटस मदर एंड हर टू कज़न, यानी कवित्री की माँ और उनकी दो चचेरी बहनों को यहाँ पे ऑल थ्री कहा गया है। स्टिल, स्टिल का मतलब यहाँ पे मोशनलेस, यानी जिसमें कोई गति नहीं है। स्माइल थ्रू देयर हेयर विथ सम हेयर स्ट्रैंड्स फॉलिंग ओवर देयर आइज एंड फेस। यहाँ पर है कि उनके जो बाल थे उनके चेहरों पर, आंखों पर बिखरे हुए थे, उसको यहाँ पे स्माइल थ्रू देयर हेयर से डिनोट किया गया है। ए स्वीट फेस, यहाँ पे द मदर ऑफ द 8 अनबॉर्न पोइटस लुक चार्मिंग विथ हर इनोसेंट फेस, यानी अभी कवित्री का जन्म भी नहीं हुआ था क्योंकि उनकी माँ महज 12 साल की थी और उनके चेहरे पर जो सुंदरता थी, जो इनोसेंस के भाव थे, उसको यहाँ पे स्वीट फेस के माध्यम से दर्शाया गया है। चेंज लिस्ट, द सी ओवर द ईयर्स हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल और वेरी लिटिल। समुद्र में जो लहरें थी वो आज भी वैसी ही हैं जैसा उस समय थी जब उसकी माँ बच्ची थी, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। वास्ट का मतलब यहाँ पे टच्ड है, यानी पखार रहा था। और टेरिबली का मतलब है ग्रेटली। एट फास्ट स्पीड मतलब बहुत तेज से। ट्रांजिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अनस्टेडी और मूविंग, यानी जो रेस्ट में नहीं है, जो मोशन में है, यानी चंचल है। तो ट्रांजिएंट का मतलब यहाँ पर आप समझें चंचल, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेंजा था। अब इस सेकेंड स्टेंजा का मतलब पहले समझ ले, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वे तीनों लड़कियां कवित्री की माँ जो उस समय मात्र 12 वर्ष की थी तथा अविवाहित थी, तथा उसकी दो मौसेरी बहनें खड़ी होकर चेहरे पर लटके कुछ बालों के पीछे से मुस्कुरा रही थी। सामने उनके चाचा कैमरा लिए फोटो खींच रहे थे। माँ का चेहरा अति सुंदर था। यह बात उस समय की है जब कवित्री का जन्म नहीं हुआ था और समुद्र की लहरें उन तीनों के चंचल अस्थिर पैरों को पखार रही थी। लड़कियों के पैरों की तो शक्ल बदल गई पर समुद्र की लहरों में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये सेकेंड स्टेंजा का मीनिंग है। नाउ हम लोग देखते हैं क्या प्रोबेबल क्वेश्चन सेकेंड स्टेंजा से हम लोग कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ फिर से हैं। व्हाट डज 3 रेफर टू? 3 यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है? सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन? कब और कहाँ ये तस्वीर ली गई थी? नाउ थर्ड क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट, यानी सी में और फीट में क्या तुलना की गई है इस स्टेंजा में, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे आप देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो 3 लड़कियां कौन थी, तो ऑब्वियसली आपको पता है आंसर, फिर भी देख लें। द 3 आर बेटी, डॉली एंड द मदर ऑफ द पोएटस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फोटोग्राफ कब लिया गया और कहाँ लिया गया? द फोटोग्राफ वॉज टेकन ऑन द सी बीच बाय द अंकल, ठीक है, व्हेन पोएटस मदर वॉज 12 years old and they had gone to celebrate their holidays on sea beach. Okay, now third question, comparison between the feet and the sea. The sea is unchanging whilst human feet being washed by the sea waves are fast changing. यहाँ पर जो सी है वो अनचेंजिंग है, जबकि यहाँ पे ह्यूमन फिट की जो बात की जा रही है, जो पानी जो समुद्र के पानी हैं उनके पाँव को पखार रहे हैं, तो उसमें तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। ये कंपैरिजन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए, बदलाव आने का मतलब क्या है कि सी तो जैसा था वैसा ही है, बट उनकी माँ और उनकी जो बहनें थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजिंग आया और बहुत सारे चेंजिंग यहाँ पे हुए हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सी है वो अनचेंज्ड चीज़ों को बता रहा है, और यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ बॉडी है वो चेंज, नॉट ओनली बॉडी बट द चेंज ऑफ थिंग्स एंड सर्कमस्टांसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ कैसे परिवर्तन आता है उस चीज़ को डिनोट करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज किया गया है, ठीक है। नाउ हम लोग स्टेंजा 3 की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ स्टेंजा 3 देखें, इसके लाइन्स। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. These are the lines of the third stanza. Some important words and their probable meanings. Now, you can see, she यहाँ पे किसको बोला गया? The mother of the poetess. Snapshot तो आप समझ चुके हैं, the photo. Laugh at का मतलब है फाइंड्स हर ड्रेस एंड अपीयरेंस फनी,
यानी फ़ोटो को देखकर उसकी माँ को हंसी आई है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो ड्रेस पहने थे वो काफ़ी फ़नी लग रहा था। बेटी एंड डॉली, द टू कज़न, अभी मैंने बताया। ड्रेसेस अप, ड्रेस्ड अप, पुट ऑन ए कैजुअल ड्रेस फॉर द आउटिंग ऑन द सी बीच। यानी उन्होंने कैजुअल ड्रेस पहन रखा था आउटिंग के लिए जब गए थे तो। और बीच का मतलब है द थ्री कजन सिस्टर्स हैड गॉन टू द सी बीच फॉर एन आउटिंग और हॉलीडे। समुद्र बीच, समुद्र तट का किनारा जहाँ पे पानी कम बहुत स्वेलो होता है उसको हम लोग सी बीच कहते हैं। और जनरली लोग वहाँ पे अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टैंजा था आप इसका मीनिंग यहाँ पर देख लें। जब वो फोटो खींची गई थी उसके 20-30 वर्ष पश्चात माँ अपनी बेटी कवित्री को फोटो दिखाकर हंस देती है। वो बताती है कि देखो मेरी बहनों, बेटी तथा डॉली ने हम सबको किस प्रकार के अजीब कपड़े पहना दिए थे। स्वयं को उस भड़कीली वेशभूषा में देखकर माँ को लाजबस हंसी आ जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेंजा। नाउ 3 questions have been taken here. The first question, the poetess mother laughed at the snapshot. Why? What did her laugh indicate? यानी कवित्री की माँ जो है वो स्नैपशॉट को देखकर हंसी हैं। तो क्यों हंसी हैं और उनकी हंसी यहाँ पर क्या बताती है, क्या इंडिकेट करती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्नैपशॉट टेकन, स्नैपशॉट कब लिया गया था। एंड द थर्ड क्वेश्चन, हु हैड ड्रेस्ड द स्पीकर, व्हाट वाज फनी अबाउट द ड्रेस। स्पीकर यानी कि कवित्री की माँ को ड्रेस किसने पहनाया था और ये फनी क्यों था। ठीक है, नाउ इसका आंसर आप कुछ तरह से लिख सकते हैं। सी द आंसर ऑफ दिस ऑल 3 questions. फर्स्ट क्वेश्चन, द मदर ऑफ द पोएटेस वाज एट दैट टाइम some 12 years old. Now after 20-30 years the mother cannot help laughing at her own picture in a casual holiday costume. 20-30 साल बीत चुके हैं उस घटना को और उनकी माँ अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कवित्री का जन्म हो चुका है और तब वो जब उस फोटो को देखती है तो अपने ड्रेस को देखकर, जो कि अभी के हिसाब से काफ़ी फनी था, उनको उस मोमेंट और उस खुशी के क्षण की याद आती है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्नैपशॉट वाज टेकन ऑन द सी बीच बाय द पोएटेस अंकल सम 20-30 ईयर्स एगो। यानी लगभग 20 से 30 साल पहले ये जो स्नैपशॉट था वो लिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, द पोएटेस मदर हैड बीन ड्रेस्ड अप फॉर द हॉलीडे बाय हर 2 कजन बेटी एंड डॉली। ऑल द थ्री वर ड्रेस्ड इन गर्लिश बीच ड्रेसेस। यानी अक्सर जब बच्चे जाते हैं बीच में इंजॉय करने के लिए तो उस समय जो ड्रेसेस होते हैं, चूँकि बचपना होता है और बाद में जब उसको देखते हैं तो लगता है कि अरे हम लोग बचपन में ऐसे ड्रेस पहना करते थे। और यहाँ पे पोएटेस की मदर को भी यही फीलिंग आ रही है, तो यही इसलिए उनको यहाँ पे थोड़ा हंसी भी आता है और उनको फ़नी लगता है अपना ड्रेस जो है। नाउ हम लोग चलते हैं स्टैंजा 4 की ओर। स्टैंजा 4 की लाइन्स को देखें। The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. Now, some important words of this stanza and their probable meaning. Sea holiday, an outing for pleasure. फॉर मेरी में मज़े के लिए, आनंद के लिए जब हम लोग जाते हैं आउटिंग करने के लिए समुद्र तट पर, उसको सी हॉलीडे कहते हैं। फॉर मेरी मेकिंग ऑन द सी बीच, मेरी मेकिंग का मतलब होता है एंजॉय करना। ठीक है ना। द 3 गर्ल्स वेर स्कॉटेड बाय देयर अंकल हु कैरीड ए कैमरा टू शूट देयर फोटोज। द फोटो वॉज सम 30 years old. द पोएटेस मदर शोड इट टू हर ओन डॉटर. द पोएटेस was her past. यहाँ पे देखिए जो वर्ड है, फ्रेज है, द सी हॉलीडे रिप्रेजेंटेड द मदर्स चाइल्डहुड। यहाँ पे जो पास्ट की बात कर रही है वो उन हॉलीडे के दिनों की बात हो रही है जो उनकी मदर के बचपन का है, यानी उनका पास्ट टाइम है। ए लॉन्ग टाइम का मतलब है बहुत समय पहले। माइन इज हर लाफ्टर, द मदर पास्ट अवे। यानी देखिए यहाँ पे जो ये लाइन है इसको थोड़ा सा आप समझ लें इसके बारे में। द पोएटेस ऑन सीइंग द सेम फोटो ईयर्स आफ्टर मदर्स डेथ फील सैड। यानी अब उनकी माँ का देहांत हो चुका है, काफ़ी समय बीत चुका है और उस फोटो को फिर से देख रही हैं तो वो उदास हो जाती हैं। सी मिसेस द मदर्स लाफ्टर, वो अपनी माँ की उन हंसी को मिस करती हैं। राय का मतलब है सैड यानी उदास। डिसपॉइंटेड यानी हताश या निराश कह सकते हैं।
बोथ द फोटो एज वेल एज द पोएटेस, यहाँ पर बोथ का मतलब है दो लोग, एक तो फोटो और दूसरा कवित्री खुद। लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका मतलब है बोथ हैड सफर्ड द रेवेजेस ऑफ टाइम एंड बोर द लॉस, यानी जो फोटोग्राफ है वो भी समय के साथ साथ उस बहुत फेड हो गया है, और साथ ही कवित्री की जो यादें हैं, उनकी माँ की जो हंसी है जिसको वो मिस कर रही हैं, और जो उनको बोर करता है, सैड करता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है लेबर्ड इज ऑफ लॉस, यानी दोनों लॉस कर रहे हैं समथिंग। द फोटो इज फेडिंग एंड द पोएटेस हैज लर्न टू बियर द लॉस ऑफ हर मदर विद द पासिंग ऑफ टाइम। फोटो जो है वो फेड हो चुका है, और कवित्री जो है चूंकि उनकी माँ का देहांत हो गया है, समय काफ़ी बीत चुका है, तो अब वो अपने अकेलापन को एक्सेप्ट कर चुकी है, और कैसे लॉस को बियर करना है, कैसे उसको टोलरेट करना है, ये सीख चुकी है। इसका मीनिंग आप देख लें तो फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब तीनों बहनें समुद्र तट पर मौज मस्ती के लिए चाचा के साथ गई थी, उस घटना को बीते हुए 20-30 वर्ष हो चुके थे, इसलिए वह कवित्री की माँ के लिए अतीत की बात हो चुकी थी। पर उस चित्र में अपनी वेशभूषा को देखकर माँ हंस दी थी। उस हंसी की बीते भी अनेक वर्ष हो चुके हैं। वह हंसी अब कवित्री के लिए अतीत की घटना बन गई है। वह फोटो तथा वह हंसी दोनों ही मंद पड़ चुकी है। ठीक है। नाउ probable question from this stanza. See the question, first question. What is the significance of the sea holiday here? Second question. Explain the sea holiday was her past and mine is her laughter. यानी सी हॉलीडे उनके लिए पास था और मेरे लिए उनकी हंसी। इसका मतलब क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हु डज बोथ हेयर रिफर टू, यहाँ पे बोथ किसके लिए रिफर हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस बताना है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे इज दैट द मदर वॉज ऑल्सो ए गर्ल वंस एंड इट रेफर्स टू ए हैप्पी मोमेंट इन हर लाइफ ऑन द सी बीच। इसका मतलब देखिए, अगर इसको डेप्थ में जाएं तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों क्षण आते हैं, और जो सुख के क्षण हैं वो हमें दुख के क्षणों में खुशी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज़ नॉट कांस्टेंट एंड इट इज़ डायनामिक यू कैन से, एंड sorrow and happiness both comes one by one, so we should try to remain happy in every difficult situation. This line means okay. Now the second question, answer of the second question. The mother had seen her photo taken 20-30 years earlier when she was just 12 years old, so that photograph denoted her own past first. Now, but the poetess who had heard her mother laugh is also bereaved. The mother has passed away. Her laughter is also thing of the past for the poetess. Now third, both here refers to the photograph and mother's laughter. बोथ यहाँ पे एक फोटोग्राफ को रिफर कर रहा है और दूसरा माँ की हंसी को रिफर कर रहा है। ओके, नाउ स्टैंजा 5. See the line first. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silences. Now some word notes, some meaning of the some important words here. She, the mother of the poetess. See यहाँ पे मदर की माँ, सॉरी पोएटेस की माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है. She passed away some 12 years ago. This circumstance का मतलब the period after the death of the mother, the loss and the grief of the poetess. There is nothing to say at all. Means life has been life has been dull and eventless after the mother's death. The void created by her death is slowly becoming less painful. यानी जब कोई मरता है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे समय जो है वो हर जख्म को भर देता है और धीरे धीरे जो यादें हैं वो लेस पेनफुल बन जाती हैं. टाइम विच पासेस साइलेंटली
but steadily weakens old memories of loss and grief. समय चुपके से निकल जाता है और ये हमारे जो मेमोरीज हैं या चीज़ें हैं उनको वीक कमज़ोर कर देती हैं। और इसलिए फ़ोटोग्राफ का यह एग्जांपल दिया गया कि समय बीतने के साथ साथ फ़ोटोग्राफ जो वो पुराना हो रहा था, उसका इम्पोर्टेंस लॉस्ट हो रहा था। और ठीक इसी तरह से वो यादें जो कवित्री को सताती थी पहले माँ की, अब धीरे धीरे लेस पेन उनको दे रहा था। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे देख लें पहले। अब तो माँ को गुजरे हुए भी लगभग उतना ही समय बीत चुका है जितनी बड़ी इस फोटो में दिख रही थी। उसकी मृत्यु द्वारा हुई क्षति और दुख के बारे में भी अब कहने को क्या रह गया है। समय ने चुपके से उन पुरानी यादों तथा दुखों को धुंधला कर दिया है। अब उन्हें याद करने से कोई लाभ नहीं है। समय सब दुखों को भुला देता है। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द लाइन्स ऑफ दिस स्टेंजा। नाउ द प्रोबेबल क्वेश्चन taken from this stanza. The first question: how many years ago had the poetess mother died? Second question: what does these circumstances refer to? And third question: explain its silences. Now, answer may be written as the first question's answer. It is some 12 years since the poetess mother passed away. These circumstances refers to the death of the mother. Question 3. The mother's voice has been silenced forever. माँ की जो आवाज़ है वो हमेशा के लिए साइलेंस हो चुकी है। The photo cannot laugh. अब फोटो तो हंस नहीं सकता। The poetess also feels depressed and speechless. और ये जो पेन है उसके कारण कवित्री जो है वो खुद डिप्रेस्ड फील कर रही हैं और स्पीचलेस, उनको कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है। नाउ सम क्वेश्चंस मे बी important for your exams. Now see the first question. What did the cardboard picture capture? The answer is very simple. You can see the answer here. The cardboard snapshot captured the happy faces of three cousins enjoying a sea holiday. Now second question. What do you think made the poetess mother laugh? आपको क्या लगता है किस चीज़ को देखकर माँ कवित्री की जो माँ है उनको हंसी आई है? नाउ सी द आंसर। सॉरी, यहाँ पे सी होगा। शी लुक्स एट द एज ऑफ 12 and her pretty beach dress as captured in the photo made her laugh. Now question 3. When and where were the three cousins photographed? The answer is same. You have seen it, but see again. The three girls were photographed by their uncle on the sea beach. They had gone there on a pleasure trip. They stood in the shallow water with sea waves washing their feet. Now the next question. Question number 4. What does the poetess mean by their terribly transient fate? A very important question this. Now see the answer of this important question. The dictionary meaning of the word transient is brief and fleeting. The three girls were at a growing age. They underwent notable changes as time passed, but the sea suffered no change over the years. The expression highlights the contrast between mortal man and timeless, ageless sea. सी यहाँ पे जो ट्रांजिएंट वर्ड है इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है ब्रीफ एंड फ्लीटिंग। बट यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पर दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट का मतलब अभी ये जो तीनों बहनें हैं एक्चुअली दे आर इन ग्रोइंग एज, एक्चुअली दे आर चिल्ड्रन, दे वर चिल्ड्रन एक्चुअली, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वाज ग्रोथ इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, but there was no change at all in the appearance of timeless, ageless sea. Okay, so sea has no changes at all, but the human beings and their circumstances has so many changes. Now question number 5. Explain the sea holiday was her past, mine is her laughter. We have seen the same question, but now this is short type answer. So answer may be probably written as the determiner her
at both places refers to the poetess mother. The picture taken during the sea holiday 20 to 30 years ago made the mother laugh. Her sea holiday was her past, but 12 years after the mother's death, her daughter has now become a thing of past for the poetess. Okay, now question number 6. Now she has been dead nearly as many years as that the girl lived. How many years have passed since the mother's death? 12 years have passed since the mother's death, because the age of poetess when she was describing this moment in this poem was 12, and 12 years ago her mother had already been died. Okay, now the question 7. Explain its silences. Now see the answer. The period of nearly 12 years since the poetess' mother passed away has been painful for the poet. She can not hear the laughter anymore. There is only silence now, and the poet has to bear her loss in silence. This is the answer of this question. Okay, now thanks for watching this video, and I hope you have enjoyed this. And if you have not enjoyed, don't worry at all. Sometime we should try to focus the subject matter, but everything which we are going to learn, we always try to learn this in a very joyful manner. If you will take it as a burden, then simpler things may you feel difficult. So take it easy. See the video again. If you have any problem, try to understand the meaning of the words, meaning of the lines, and the question as discussed in this video. I think it will be proved very helpful for you. Okay guys, so now I will meet you again in the next video. Till give me the permission. And now very thanks to all for watching this complete video. Now thank you everyone.